سارے شہر میں یہ بات پھیل چکی ہے. سبھی جانتے ہیں کہ جزار سیف نے زلیخا کی خواہش کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا اور خود کو آلودہ گناہ نہیں ہونے دیا. اس نے یہ تو بتایا تھا کہ اپنے ارباب اختیار کی نافرمانی کے سبب سزا ہوئی ہے، لیکن حکم کیا تھا یہ نہیں بتایا. اچھا، تو اس کے قید ہونے کی وجہ یہ تھی. آفرین ہے اس پاک باز جوان پر. پتہ نہیں کیوں روز بروز اس جوان سے میری انسیت بڑھتی ہی جا رہی ہے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بہت سے خوبرو حسینوں نے انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن انہوں نے سب کو نظر انداز کر دیا. خداؤں کی رحمت ہو تم پر یزار سیف. سپاس گزار ہوں. جو خدا خود عدم تحفظ کا شکار ہوں، وہ کیا کسی کی حفاظت کریں گے. معبد کی تمام کاہن آمون کے نام پر جو چاہیں منمانیاں کرتے پھریں اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں. کیا خدا ہے آمون کو یہ سب کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ کون نہیں جانتا کاہنان معبد صرف ہوس مٹانے کے لیے دوسروں کی بہو بیٹیوں کو زبردستی اٹھا کر معبد لے جاتے ہیں، ورنہ خدا آمون کو بھلا بیویوں کی کیا ضرورت. چلیں چھوڑیں، آپ کس جرم میں قید ہیں؟ اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے میں نے آمون کے حرم سرا میں داخل ہو کر چند کاہنوں کو مارا پیٹا، جس پر انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور یہاں لے آئے. اب مدت سے یہاں پڑا ہوا ہوں اور میرے بیوی بچوں کی کوئی خیر خبر نہیں. آپ پریشان مت ہوں، میں اپنے دوست نیمی صاحب کو ان کی تلاش میں بھیجوں گا تاکہ وہ ان کی حد المقدور مدد کرے. زندگی کے سرد و گرم حالات اور ان کی سختیوں کو ریتنے کا آلہ سمجھیں اور اس سے اپنے وجود کو سیکل کر کے جلا بخشیں. مبادا یہ صعوبتیں آپ کی روح کو سیاہ و مقدر کر دیں، مبادا یہ سختیاں دنیا کو آپ کی نگاہوں میں ایک تنگ و تاریک بند گلی میں تبدیل کر دیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو زندان میں نہیں ہیں، لیکن اندرونی اضطراب اور ذہنی پریشانیوں نے اس دنیا کو ان کی نظروں میں اس زندان سے بدتر کر دیا ہے. زندان سے نجات پانے کی خواہش شیریں ہے اور عدم نجات تلخ. بیرونی دنیا کی خواہشات بھی اسی طرح ہیں. جتنا جتنا خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے وہ آپ سے اتنا ہی دور بھاگیں گی جیسے سایہ، لیکن اگر ان خواہشات سے منہ موڑ لیں گے تو وہ خود آپ کے پیچھے آئیں گی. موم سے بنے پیکر کے ساتھ زیر آفتاب مت جائیں کہ وہ پگھل جائے گا اور آپ اسے گنوا بیٹھیں گے. اس خاکی و فانی جسم کے ساتھ لامتناہی آرزوؤں کی تکمیل میں بہت دور مت نکل جائیں کہ یہ عمر ختم ہو جائے گی، جسم فنا ہو جائے گا، لیکن یہ لامتناہی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوں گی. ہر بہار کو زد خزاں کا سامنا ہے، ہر تخت نشین کو بالآخر ایک روز تختہ نشین ہونا پڑے گا. بس کیا بہتر نہ ہوگا کہ اس تنگ و تاریک زندان کو ہی نور و روشنی سے بھرا ہوا دیکھیں. کس خوشی میں، کس آس امید پر ہمیں اتنا خوش و خرم ہونا چاہیے؟ بہترین محبوب کا انتخاب کریں. جس کے ساتھ اس کا محبوب ہو وہ ہر فکر و غم سے بے نیاز ہو جاتا ہے. تم دیوانے ہو. یہ قید خانہ اور ہم سب چلتی پھرتی لاشیں، صرف دفن ہونا باقی ہے. اس شہر خاموشہ کے باسیوں کو
तुम महबूब और पहलुए महबूब की खुशखबरी सुना रहे हो। याद रखिए दोस्तों, हर शख्स का महबूब वो है जिसकी वो परस्तिश करता है। वो लोग जो बेजान महबूब की परस्तिश करते हैं, उनके नसीब में सिवाय नाला और फरियाद और कुछ नहीं होता। और वो जो जिंदा महबूब की परस्तिश करते हैं, उनके लिए गोशाए ज़ंदान हो या बाग व बयाबान, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूज़रसीफ, जिस महबूब की वजह से तुम्हारा ये इत्मीनान और सुरूर है, ऐसा कोई खुदा नहीं है। वही हाजिर और नाज़िर जिंदा महबूब जो हमेशा मेरे साथ साथ है और हर हाल में मेरा मुहाफिज और मददगार है। यूज़रसीफ इन लकड़ी और पत्थर के बेजान महबूबों की परस्तिश नहीं करता। बोलो, क्या हुआ? कुछ पता चला? ऐसा लग रहा है जैसे उसे जमीन निकल गई हो। सब जगह देख लिया लेकिन कहीं उसका कुछ पता नहीं चला। अगर किबूनी गिरफ्तार हो गया तो हमारा काम तमाम समझो। अबू पीस और बीना रूस क्या कम थे जो काहिन किबूनी का भी इजाफा हो गया। अगर इनमें से किसी एक ने भी जबान खोल दी तो आमुन हो तब या तो हम सबको बर्बाद कर देंगे या मावत के इख्तियारात के दायरे को महदूद कर देंगे। अब ये इतना भी आसान नहीं है। वो जानते हैं कि जनाब आकमहू और काहनान माबद से टक्कर लेना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माबद के पैरोकार खामोशी से नहीं बैठेंगे। मेरा ख्याल है कि अपोपीस और किबोनी या तो गिरफ्तार नहीं हुए हैं या अगर हुए हैं तो अब तक कुछ बताया नहीं है। अगर बता दिया होता तो आमून होतब और पुतीफार यकीनन कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई जरूर करते। हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। तुम अपनी तलाश जारी रखो। अगर मिल जाए तो वक्त जाया किए बगैर फौरन खबर करो। आप लोग भी आमून के सिपाहियों को तैयार रखें ताकि मुमकिन हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई हो सके।
बंद है खुदा, क्या हुआ? यह ऊंट क्यों भागे जा रहा है? पता नहीं, हर मुमकिन कोशिश कर ली मगर हाथ ही नहीं आ रहा। काफिले से भाग खड़ा हुआ और सीधा इस तरफ आ निकला। मुझे तो थका ही डाला। आप कनानी हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? आपके लिबास से बिल्कुल कनानियों के जैसा है। मैंने उनके साथ जिंदगी गुजारी है। ए! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या जानते नहीं ये इलाका ममनुआ है? मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा ऊंट इससे अनता गया था, सो मजबूरन मुझे इसके पीछे आना पड़ा। जल्द अज जल्द इस हुदूद से निकल जाओ। वो मेरे आबाई वतन का है। अगर इजाजत दें तो थोड़ी देर इससे अहवाल पुरसी कर लूं। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करना। आपने बताया कि कनानी है? हाँ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये जरा लंबी कहानी है। क्या आप कनान की बरगजीदा मुकद्दस शख्सियत को जानते हैं? हाँ, याकूब नबी, याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम। सुना है कि उनकी 12 पुरसमर शाखें हैं। थीं, लेकिन उनकी एक शाख काट दी गई। याकूब नबी के हालात की कुछ खबर है आपको? सुना है गमे हिजरा में मुब्तला हो गए हैं और एक बैतुल हुस्न बनाकर कोशा नशीनी इख्तियार कर ली है और इस शाखे बुरीदा के गम में बेहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। तुम क्यों रो रहे हो? कनान मुनगम रसीदा ज़ईफ के पास अगर जाएं तो कहिएगा कि एक दिलगीर और महजूर जवान कैदी ने उनके लिए पैगाम दिया है। कहना उस कैदी ने कहा है, जब भी दर्द हिजरा और सौज़े फराक से आपका दिल भर आए और आप अपने महबूब की बारगाह में दस्ते दुआ दराज करें तो बाप से बिछड़े गरीब दयार बेटों के हक में भी दुआ कीजिएगा। तुम कौन हो? तुमने अपना नाम निशान तो बताया नहीं। मुझे माफ करना, मुझे बताने की इजाजत नहीं। लो, ये तुम्हारा ऊंट आ गया, अब तुमसे डर कर नहीं भागेगा। ताज्जुब है, मैं इसके पीछे किस कदर भागा था। इसमें ताज्जुब कैसा? इस कायनात की हर शय अपनी मामूलियत के अंजाम दही में मसरूफ है और अपने मुकर्ररा हदफ की जानिब गामजन है। यानी ये ऊंट किसी खास हदफ के तहत मुझे यहाँ लाया है। कारवां वाले मेरे मुंतजिर हैं, खुदा निगहदार। उन कनानी बुजुर्गवार से कहना अपने दिल को शाख बुरीदा की बजाय याद खुदा से मामूर करें और सब्र इख्तियार करें और दुआ करें कि उसे जल्द दोबारा पा सकें। खुदा निगहदार।
बेनारोस, बेनारोस उठो, उठो बेनारोस, उठो। ख्वाब देख रहे थे? हाँ, अजीब ख्वाब था। तुम क्यों जाग रहे हो? मैं भी ख्वाब ही देख रहा था। जब ख्वाब से बेदार हुआ तो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हुआ। अगर जिंदान से बाहर होते तो मोहब्बत के जादूगरों और मुअब्बिरों से पूछने चले जाते, लेकिन पता नहीं यहाँ किसी को ताबीर आती है भी या नहीं। युजार सिर्फ? हाँ, फिलहाल तो काफी रात हो चुकी है। कल सुबह अगर युजार सिर्फ कल मादने संग चला गया तो? जिंदान के सफाई सुथराई के हवाले से केदामुन ने खुश होकर कल तातिल का ऐलान किया। मैं तो सोने लगा हूं। तुम्हारे ऐलान रिसालत का वक्त आन पहुंचा है। आज से बहुक्म परवरदिगार इन कैदियों और अहले मिस्र की यकता परस्ती की जानिब तबलीग व हिदायत का फरीजा तुम्हें सौंपा गया है। बेशक इस राह में खुदावंद तुम्हारा हामी और मददगार होगा। खुदा ने तुम्हें मुंतखब किया है और तुम्हें ताबीर ख्वाब का कसीर इल्म अता किया है। वो तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को इत्माम करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे अजदाद इसहाक और इब्राहिम पर इत्माम नेमत करके उन्हें इमामत व विलायत के दर्जे पर फाइज किया था। वो मैंने और बिनारूस ने कल रात एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। क्या तुम उसकी ताबीर बता सकते हो? क्या ख्वाब देखा है? बताइए, देखता हूं। मैंने ख्वाब में देखा था, मैंने 3 खोशा अंगूर का अर्क एक जाम में निचोड़कर फरमा रवा को पेश किया। बड़ा बारौब फरमा रवा था। अच्छा ख्वाब नहीं है। हाँ, अच्छा ख्वाब नहीं है ये। खूब। और आपने क्या ख्वाब देखा है? मैंने ख्वाब में देखा कि एक सीनी पुराज नानो गज़ा की मेरे सर पर है और परिंदे नीचे आकर उसमें से नानो गज़ा लेकर ऊपर चले जाते हैं। हाँ, ऊपर लेकर चले जाते हैं। अगर मेरी बताई हुई ताबीर आपके हक में न हुई तो क्या आप उसे कबूल कर लेंगे? कर लेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जो कह दें वो हम कबूल कर लें।
مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ میری بات کی حقانیت میں تردد کا شکار ہیں اور آپ حق بجانب ہیں. محض آپ کے اطمینان کے لیے کہ میں تعبیر و تعویل خواب سے واقف ہوں اور جو کچھ میں کہوں گا وہ بلا شبہ تحقق پائے گا، اور آپ کی یقین دہانی کے لیے پہلے میں آپ کو واضح نشانی بتاؤں گا، پھر آپ کے لیے تعویل خواب بیان کروں گا. مثلاً کیسے نشانی؟ مثلاً کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ آج کھانے میں ہمارے لیے کیا لائیں گے؟ سنو یوزارسیف، کیا تم جادو کا علم جانتے ہو؟ خدا نہ کرے کہ میں نے سحر و جادو کے ذریعے علم تعویل سیکھا ہو. میری روح تصدیق شدہ ہے تائیدات آسمانی سے اور الہام شدہ ہے الہامات ربانی سے. یہ ان علوم میں سے ایک علم ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائے ہیں. خدا سے تمہاری مراد آمون خدائے بزرگ مصر تو نہیں ہے نا؟ کیا ایک بے جان پتھر کو بھی غیب اور تعبیر و تعویل خواب کا علم ہو سکتا ہے؟ میں نے کفر پرستوں سے دوری اختیار کی، اور جو قوم خداوند یکتا پر ایمان نہ رکھتی ہو اور روز قیامت کی منکر ہو، میں ان کی اطاعت و پیروی نہیں کرتا. آج کھانے میں بھنی ہوئی مچھلی، نان گندم اور چند خورمے ہیں. یوزارسیف، یہ زندان ہے، مہمان سرا نہیں. قیدیوں کو ایسے کھانے خواب میں بھی میسر نہیں ہوتے. ایسے کھانے امیر اپنے محلوں میں شراب کے ساتھ تناول فرماتے ہیں، زاویرہ کے قیدی نہیں. جو کھانے تم نے بتائے کیا واقعی وہ لائیں گے؟ صف میں کھڑے ہو جاؤ. آج کھانے میں کیا ہے؟ اگر بتا دوں تو یقین نہیں کرو گے. بھنی ہوئی مچھلی، نان گندم اور کھجوریں. تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ کھانا تو ابھی ابھی لایا گیا ہے. جیسا کہ یوزارسیف نے کہا، کھانے میں مچھلی ہے. قید کھانا اور ایسا کھانا تعجب ہے. یہ کھانا بانو زلیخا کی سفارش پر بھجوایا گیا ہے. زلیخا نے بھجوایا ہے. تو یوں کہو نا، یہ زلیخا کی کرم نوازی ہے. میں بھی کہوں کہ زندان زاور میں ایسے کھانوں کا کیا کام؟ بانو زلیخا نے قیدیوں کی حالت اضطرار کی پیش نظر ترس کھا کر ان کی دلجوئی کی خاطر بھجوایا. تمام قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی خاطر یا ایک قیدی کی خاطر؟ اب ہمیں یوزارسیف کے تعبیر خواب کے علم میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہا. بے شک جو تم کہو گے وہی ہوگا. یوزارسیف، تم تو ہمارے پاس بیٹھے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج کھانے میں کیا ہے؟ جو کچھ بھی میں جانتا ہوں وہ جانب پروردگار مجھے تعلیم کیا گیا ہے. میں اس خود کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تم کس خدا کی بات کر رہے ہو اور کس آئین کے پیروکار ہو؟ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کی اتباع کرتا ہوں، دین ابراہیم و اسحاق و یعقوب. تم ابراہیم کی نسل سے ہو، وہی جو خدائے یکتا کی عبادت کرتے تھے؟ ہاں، وہی ابراہیم جنہوں نے آپ کے متعدد خداؤں کے خلاف قیام کیا.
वही जो कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के खिलाफ तमाम जिंदगी बरसरे बेकार रहे। हजारों साल से हमारे आबाओ अजदाद बुत परस्ती करते आ रहे हैं और इन बुतों के आगे सजदा रेज रहे हैं। अब उनकी परस्तिश में क्या बुराई है? वो मुजस्मे जो मोम की तरह संग तराश के हाथों में नर्म होते हैं और संग तराश जिन्हें तोड़ने पर कादिर होते हैं, वो ज्यादा लायक परस्तिश हैं, या वो खुदा जो कभी मगलूब नहीं होता जबकि खुद संग और संग तराश उसकी कुदरत के आगे मगलूब हैं? यकीनन ऐसा खुदा लायक परस्तिश और लायक मोहब्बत है, लेकिन हमें कैसे मालूम है कि कोई ऐसा खुदा भी मौजूद है और इस अजीम कुदरत का मालिक है? इस बात से जान लें कि मुझे आपकी हिदायत के लिए भेजा है और तावील ख्वाब और गैब का इल्म मुझे वदियत किया है। क्या मैंने आपके आज के रिज़्क़ से आपको बाखबर नहीं किया था? तो क्या महज इस एक पेशिंगोई की बिना पर हम तुम्हारे खुदा की परस्तिश करने लगे? मैंने आपसे कहा कि मेरा इल्म अज़ जानिब परवरदिगार आलिम है, न कि अज़ जानिब खुद। मैं अब आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो अब तक नहीं बताई। मैं अपने अजदाद इब्राहीम, इसहाक और याकूब के बाद खुदा यकता का भेजा हुआ एक पैगंबर हूं। और आप लोगों को अपने जद इब्राहीम के दीन की पैरवी और खुदा यकता की परस्तिश की दावत देता हूं। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। क्या वाकई तुम एक पैगंबर है खुदा हो? मैं सिलसिला अंबिया इलाही की एक कड़ी हूँ जिन्हें हिदायत बशरी के लिए मुंतखब किया गया। मुझसे पहले आदम और नूह और इब्राहीम और इसहाक और याकूब थे, और मेरे बाद भी ये सिलसिला रिसालत जारी रहेगा, और नस्ल इब्राहीमी से सिलसिला अंबिया की आखिरी कड़ी बनाम अहमद खातमुन नबीयीन होंगे। एक पैगंबर और ज़ंदान में? ज़ंदान मिल्कियत खुदा में फरस्ताद खुदा और आप सब बंदगान खुदा हैं, लिहाजा ज़ंदान हो या बैरून ज़ंदान, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे ख्वाब की ताबीर का क्या हुआ? मैं आपके मसले को भूला नहीं, खातिर जमा रखें, लेकिन आपके ख्वाब की तावील आपके ईमान से मशरूत है, उस खुदा पर ईमान जिसने मुझे इल्म तावील ख्वाब सिखाया। हम ईमान लाते हैं, जो कुछ आप कहेंगे इस पर ईमान लाते हैं। कोई एतराज नहीं, लेकिन फिलहाल हम आपके खुदा को तो नहीं पहचानते ना। जिन खुदाओं की परस्तिश आप लोग अब तक करते रहे हैं, क्या उन्हें पहचानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आपके तमाम खुदा कमजोर और नातवा और बेजान पत्थर हैं? आया जानते हैं कि इन बेजान पत्थर के मुजस्मों की परस्तिश करने के लिए आपके पास कोई कवी दलील मौजूद नहीं है, जबकि मेरा माबूद खालिक़े कुल्ले मखलूक़ात और मौजिबे कुल्ले मौजूदात है, बेमिस्ल बिला शरीक मालिक। हाँ तो आप उपीस बिना रूस, अब आपका क्या इरादा है? आपके खुदा के हकानियत का मुशाहिदा आज हमने उसके पैगंबर की विसातत से किया है। मैं ईमान लाता हूँ। और आप उपीस, तुम बोलो। सच पूछे तो जब जब ये सोचता हूं कि मैं अपनी तमाम उम्र एक कमजोर नातवा वजूद की परस्तिश करता रहा तो अफसोस होता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि आपका खुदा हमारे खुदाओं से बदरजहां बेहतर है। मैं भी बीनारूस की तरह ईमान लाता हूं। गो कि आपका खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे उन खुदाओं से कहीं बेहतर हैं जो हमें देखते हैं, लेकिन हमारी हालत ज़ार पर तवज्जो नहीं देते। अगर आमून और तिब्स के दीगर खुदाओं से कोई अच्छाई देखी होती तो यकीनन तरदीद करता, लेकिन अगर आपका खुदा आप ही की तरह मेहरबान है
तो मैं आपकी तरह उसे भी पसंद करता हूँ। मैं उस खुदा पर जिसने अपने पैगंबरों को हमारी हिदायत के लिए भेजा ईमान लाता हूँ। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूँ। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूँ। मैं आज के बाद ऐसे खुदा की परस्तिश करूंगा जो मेरा खालिक है, ना कि मखलूक। मैं भी आज से खुदा यकता की परस्तिश करूंगा। मैं भी अब इन बेजान पत्थर के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता। अब आप सब मेरे साथ दोहराएं। शुरू खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से। शुरू खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से। हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से, हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से और दीगर जमीनी खुदाओं से और दीगर जमीनी खुदाओं से बेजारी का इजहार करते हैं, बेजारी का इजहार करते हैं और खुदावंद यकता पर ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं। आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आली जनाब? मसलन कैसी कार्रवाई? वो तमाम कैदियों को यकता परस्ती की दावत दे रहा है, तो फिर हमारे आबा और अजदाद के आइन का क्या होगा? ज्यादा सख्त मत लो। युजार सिर्फ जिंदान के लिए आराम और सुकून का मूजिब है, और हम भी तो यही चाहते थे। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, जिस भी आइन पर चाहे रहें। जनाब इजहार सिर्फ, हम ईमान लाए हैं, अब हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बताइए। पहले मुझे कौल दीजिए कि आप अपने ख्वाब की ताबीर को कबूल करेंगे, खा वो आपके हक में हो या ना हो। मैं वादा करता हूँ। हम अपने वादे पर कायम हैं। बिनारुस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे और दोबारा जाओ मर्तबा हासिल कर लोगे। अलबत्ता तुम आपूपीस 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। नहीं, ये सच नहीं है। नहीं, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। झूठ कहा था। हाँ, झूठ। जब मैंने देखा कि बेनारूस ने ख्वाब देखा था, तो मैंने सोचा खुद से एक फर्जी ख्वाब गढ़ लूं। मैंने झूठ कहा था। धोखा खा गई युजार सिंह, तुम्हारे झूठे दावों की पोल खुल गई। झूठा पैगंबर, इसने कोई ख्वाब ही नहीं देखा। तुमने एक अनदेखे ख्वाब की ताबीर दे दी। काश तुम्हारा कहा दुरुस्त होता, मगर सदैव जो कुछ मैं कह चुका वो मुकद्दर बन चुका और बिला शुबा ये होकर रहेगा। मैं भी चंद लम्हों पहले तक तुम्हारी तरह गुमान कर रहा था। मेरे ख्वाब की ताबीर बुरी है, काफी मायूस था। जबकि मैं इस खुश फहमी में था कि आखिर परिंदों को खाना देने से बेहतर क्या काम हो सकता है। लेकिन अब मैं सोचता हूं तो देखता हूं कि युजार सेफ सही कह रहे हैं। ये सच है, काहिना ने माबद आमून ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी कोई मदद ना की। मैंने क्या किया?
आमून होतब के कत्ल का इरादा किया, लिहाजा सजा तो मिलेगी ना। करार बाकी सजा मौत। मौत मौत ही एक यकीनी और हतमी सजा है, यकीनी और हतमी। बिना रूस तो क्या काहनान माबद कोई मदद नहीं करेंगे? अगर ताबीर इज़ार सिर्फ दुरुस्त हुई तो? जनाब आली, हम जितना ज्यादा अखमाहू और पादियामून को मोहलत देंगे वो खुद को उतना ही ज्यादा मुसल्ला कर लेंगे और हमारा उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनका आमना सामना कराना मकसूद है तो फौरी इकदाम जरूरी है। मेरा मशवरा है कि अखमाहू और काहिनों की मौजूदगी में किबूनी और पादियामून को सामने लाया जाए। वो आप पीस के खुल्लम खुल्ला इकरार से मुनकिर तो नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? उनका जुर्म साबित होने की सूरत में बखूबी जानता हूं कि क्या करना है। माबद के तमाम इख्तियारात उनसे जब्त करके पादियामून और आखमाहू को इबरत आमोज सजा दूंगा। बेहतर होगा कि कसर में एक पुरशको महफिल का इनकाद किया जाए जिसमें आखमाहू और उनके दीगर साथियों को मदऊ किया जाए और ऐन मौके पर किबूनी काहिन बिना रूस और आपुपुइस को दरबार में हाजिर किया जाए और उनका सामना कराया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस दावत को कबूल कर लेंगे? जब फरमा रवा आमून हो तब किसी को मदऊ करें तो उस पर जनाब की अतात लाजमी हो जाती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो एक मजलिस मुहाकमा का एहतमाम किया जाए। अतात आली जनाब। क्या हुआ? मौत बरहक है जिससे मफर मुमकिन नहीं। जल्द या बदेर सबको मरना है। आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी और अगले रोज किसी और की। अगर इंसान 1000 साल की उम्र भी रखता हो तब भी मौत का सामना करने पर कभी खुश नहीं होगा। सिर्फ अंबिया और औलियाए खुदा मौत का इस्तकबाल करते हैं। मैंने जिस तरह तुम्हें खबर मर्ग दी है
ایک خوشخبری بھی دیتا ہوں، قبل از مرگ تمہارا ایمان لانا ایک عظیم سعادت و نعمت ہے۔ تم دنیا کو ترک کرو گے، لیکن اس حالت میں کہ اپنے پروردگار کے جوار رحمت میں سکون ابدی کے مستحق قرار پاؤ گے۔ لیکن جس کسی کو بھی مصر میں مصلوب کرتے ہیں اسے حنوط نہیں کرتے اور غرب شہر اموات نہیں بھیجتے۔ ایسی صورت میں تو میں کبھی بھی سکون ابدی نہیں پا سکوں گا اور ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاؤں گا۔ کس نے کہا کہ آرام و سکون غرب میں ہے؟ ایک موحد کو بت پرستوں کی طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ تمہارا خدا تمام کائنات کا مالک ہے اور جہان فانی و باقی کے تمام امور اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ جس جگہ بھی موت سے تمہارا واسطہ پڑے گا، میں تمہیں پروردگار یکتا کے جوار رحمت میں بہشت جاوداں اور ابدی زندگی کی بشارت دیتا ہوں۔ میں جتنا بیناروس کے لیے فکر مند ہوں اتنا تمہارے لیے نہیں۔ کیوں؟ آپ میرے لیے فکر مند کیوں ہیں؟ کیا میری جان کو کوئی خطرہ لاحق ہے؟ نہیں، تمہاری روح کو خطرہ لاحق ہے۔ آپوپیس اور تم خداوند پر ایمان لانے کی بدولت گزشتہ تمام گناہوں سے پاک ہو چکے ہو، لیکن تم چونکہ ابھی اس دنیا میں رہو گے، اس لیے میں فکر مند ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ تم گناہوں میں آلودہ ہو جاؤ اور وقت مرگ گناہوں کا بوجھ لے کر اس دنیا سے کوچ کر جاؤ۔ لیکن آپوپیس اسی طرح پاک و پاکیزہ اور با ایمان اپنے خالق و پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ میری حالت روز بر روز دگرگوں اور میرا درد شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ سب مجھے خوش و خرم سمجھتے ہیں، لیکن کوئی میرے اس دل پردرد کی حالت سے باخبر نہیں۔ کسی کو میرے اندر کی گھٹی ہوئی چیخیں سنائی نہیں دیتی۔ کیا کروں کاری ماما؟ کوئی تدبیر سوچیے، کچھ تو کیجیے۔ آہستہ بانو، کیا سب کو سنانا چاہتی ہے؟ میں جسمانی ایذا دینے کے حق میں ہوں۔ یوزار شریف کو مطیع کرنے کا واحد طریقہ صرف جسمانی اذیت دینا ہے۔ بس آپ کو ذرا صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ میں نے یوزار شریف کی پرورش کی ہے، کوئی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ میری نظر میں کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آزادی کے وعدے وعید کے ذریعے ہم اسے اطاعت پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ طریقہ بے سود ہوگا، لیکن آپ کی خوشنودی کی خاطر میں ہر خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ہم آج ہی زندان زاویرہ جائیں گے۔